Dikshit. Now I am starting exercise 4.3. So in this exercise, starting from first question, which is draw the graph of each of the following linear equations in two variables. There are two variable linear equations are given and we have to draw the graph. So first part is x plus y equal to 4. In this we can we are separating variable y, any variable we can separate. We are separating y, so x goes to an RHS, that will be subtracted from 4. So we get y equals to 4 minus x. Now we can put any value for x, for which we can get a respective value for y. So here we are putting x equals to 1, 2 and 3. If we put x equal to 1, then y equals to 4 minus x, that is 1. So 4 minus 1 will be 3. Clear? Next value we put x equal to 2. So y equals to 4 minus 2, that is equal to 2. Next value we put x equal to 3. So y equals to 4 minus 3, which is equals to 1. Now we get x1 and y3. So we are drawing the graph. We are taking here class, that is scale factor we are taking on both the axes. 1 unit equals to 1 सेंटीमीटर. 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर दोनों एक्सिस पे लिया तो डायरेक्ट 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर. अगर हम डिफरेंट लेते हैं तो एक्स एक्सिस पे अलग लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिफरेंट, अगर हम डिफरेंट लेंगे तो. सो हियर फर्स्ट पॉइंट इज x1 एंड y3. x1 इज दिस एंड y3 इज दिस वन. अगर हम दोनों को मीट करें तो कहाँ मिलेगा? 1, 3, ये पॉइंट आ गया. सेकेंड पॉइंट 2, 2, x is 2 and y is 2 also, both are meeting here. 2, 2, x3 and y1, x3 is this, y1 here, these are meeting. Now join these 3 points, then we get a graph of this equation. Now second part is x minus y equal to 2. So we can separate here x, then y goes to an RHS, that will be added. So x equals to 2 plus y. Now we can put any value for y. Here we are putting y equals to 0. Similarly also we can solve, but we can also put directly. Here y equals to 0 if we put, then x equals to 2 plus y, that means 0. So 2 plus 0 will be 2. Clear? So x equals to 2. If you put y equals to 1, then 2 plus y equals to 1, so 2 plus 1 will be 3. Clear? x y equals to 2 पुट किया तो 2 प्लस वाई 2 यानी कि 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4. क्लियर? आप चाहो तो इस तरीके से शो भी कर सकते हैं. सो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 4. नाउ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज 2, 0. सो x2 एंड y0, दैट मीन्स ऑन x एक्सिस ओनली. Second point 3, 1, x is 3 and y is 1, so they are meeting here. Next is 4, 2, x is 4 is here and y2 is here, both are meeting this point. Clear? This is third point. Now join these 3 points, then we get a graph of the linear equation. Now next third part is y equals to 3x. Here directly we can put any value for x, so we are putting first value 0, so y equals to 3x means 3 into x, so 3 into 0, that means 0. Next value 1 put किया, so 3 into 1, that means 3. Next value 2 put किया, so 3 2 जा 6, so y equals to 6. First point is 0, 0, that means origin, this one. Second point is 1, 3, x is 1 is here, y3 is here, both are meeting at this point, so this is 1, 3. Now 2, 6, x is 2 is here, y6 is here, both are meeting at this point, so this is the point 2, 6. Now join these 3 points, then we get a graph of this linear equation. Fourth part is 3 equals to 2x plus y. Now we can shift 2x in LHS, so it will be subtracted from 3. So 3 minus 2x equal to y, or we can write y को first लिया, so y equals to 3 minus 2x. Clear? Now we can put any value for x, so first value we put 0. So 3 minus 2 into 0, so 2 into 0 means 0, 3 minus 0 will be 3. Next value we put 1, so 2 into 1 means 2 and 3 minus 2 means 1, so y again 1. Now we put 2, so 2 2 is 4 and 3 minus 4, that will be minus 1. Now y equals to minus 1. Now we draw the graph. So x is 0, y is 3. x0 is here, y3 is here, this one point. Second point 1, 1, x1 and y1 also, so this is the point. Next 2, minus 1, x is 2 and y is minus 1 here, they are meeting this point. So join these 3 points, then we get a equation graph of this linear equation. Now move to second question. Second question is, give the equation of two lines passing through the 2, 14. How many such lines are there and why? कितनी लाइंस और ड्रॉ हो सकती हैं और क्यों? देखिए एक पॉइंट क्या दिया हुआ 2, 14. किसी भी सिंगल पॉइंट से पास होने वाली लाइंस इनफाइनाइट लाइंस होंगी, क्योंकि अगर ये सिंगल पॉइंट है, मान लो P पॉइंट अगर मैं इसे कह दूँ, तो इस P पॉइंट से ये लाइन भी पास हो रही है, मैं इसे नाम कह दूँ AB. नेक्स्ट लाइन ये C और D भी पास हो जाएगी. अगर मैं E कह दूँ तो E और F भी पास होगी, दिस वन इज़ F. नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं इसे G कह दूँ तो G और H भी इससे पास हो रही है. क्लियर? तो ऐसी कितनी सारी लाइंस ड्रॉ होंगी? इनफाइनाइट लाइंस. क्लियर? तो इस टाइप की इनफाइनाइट लाइंस हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सिंगल पॉइंट से. क्लियर? तो आंसर तो हो जाएगा इनफाइनाइट लाइंस. और हमें दो लाइंस का एग्जांपल देना है, तो देखिए इन द गिवन पॉइंट 2, 14
एब्सिसा फर्स्ट पॉइंट होता है मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया 2 एंड ऑर्डिनेट सेकंड पॉइंट होता है मीन्स y दैट इज इक्वल टू 14. द इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट 2, 14 आर गिवन बाई. अगर हमने एक कंडीशन ले ली x प्लस वाई, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, कोई भी वेरिएबल्स है उनका कॉम्बिनेशन बाई 4 फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो मैंने प्लस से लिया पहले, दूसरा माइनस से लिया, तो x प्लस वाई लिखा और x माइनस वाई. वैल्यू क्या आएगी उसे सॉल्व कर लिया. देखो x प्लस वाई को अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या दी हुई है 2, x कितना है 2 और y कितना है 14. तो x की वैल्यू रखी है मैंने 2 और y की वैल्यू 14. तो 2 प्लस 14 कितना हो गया 16 मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 16. ठीक है, ये आप रफ साइड शो कर सकते हो. नेक्स्ट x माइनस वाई लिया तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 और y की वैल्यू 14. तो 2 माइनस 14 मीन्स माइनस 12. सो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12. ऐसे ही हम कुछ और भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ एक 2x प्लस वाई, ये भी लिख सकते हैं. तो 2x मीन्स 2 इंटू 2 और प्लस y यानी कि 14. तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा 18. तो हम ये भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 18. बट हमें केवल दो इक्वेशन लिखनी है, तो हमने एक प्लस ले लिया और एक माइनस. सॉल्व करके जो आंसर आ गया वो इक्वल में रख दिया. दैट इज द इक्वेशंस. सिमिलरली वी कैन राइट इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस ऑफ लाइन बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. या फिर एक और चीज़ जो 2 वेरिएबल इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन डिफाइंड होते हैं. क्लियर, और हर पॉइंट उसका एक सॉल्यूशन. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7. एक इक्वेशन गिवन है 3y equals to ax plus 7. इससे एक पॉइंट पास हो रहा है 3,4, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 4. अगर इससे पास हो रहा है इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई करेगा. मीन्स अगर हम इसके x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा. सो पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4. तो x की जगह 3 रखा तो 3 इंटू वाई, वाई के प्लेस पे 4 आ गया इक्वल टू a इंटू एक्स मीन्स 3 आ गया प्लस 7. 3 4 या 12, 7 को शिफ्ट कर लिया है तो माइनस आ गया इक्वल टू a इंटू 3 मीन्स 3 है. तो 12 माइनस 7 इज 5 इक्वल टू 3 है. 3 गोज टू इन डिवाइड, सो 5/3 इक्वल टू a और वी कैन राइट a इक्वल्स टू 5/3. क्लियर, दिस इज योर आंसर. a की वैल्यू आ गई 5/3. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी. इट इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. After this, taking the distance covered as x kilometer and the total fare as ₹y. Write a linear equation for this information and draw its graph. So here taxi fare for first kilometer is ₹8, it is given. Total distance is x kilometer, it is given, and total fare is given y rupees. And fare for each subsequent किलोमीटर्स मीन्स हर किलोमीटर एक्स्ट्रा मीन्स फर्स्ट किलोमीटर के बाद सेकंड किलोमीटर उसका चार्ज 5 रुपीज़ है, थर्ड किलोमीटर का चार्ज 5 रुपीज़ है, यानी कि हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर. क्लियर. नाउ फेयर फॉर 1 किलोमीटर यानी कि जो फर्स्ट किलोमीटर है पहला ही हो गया तो उसके लिए कितना है 8 रुपीज़. फेयर फॉर रिमेनिंग x माइनस 1 किलोमीटर डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस कितनी थी x किलोमीटर, 1 किलोमीटर का हम फेयर फाइंड कर चुके हैं. सो कितना डिस्टेंस बचा x माइनस 1. तो उसके लिए फेयर फाइंड करना है, वो क्या हो जाएगा 5 इंटू x माइनस 1, क्योंकि पर किलोमीटर चार्ज कितना है 5 रुपीज़ और किलोमीटर्स कितने हैं x माइनस 1. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू एक्स तो 5x, 5 इंटू 1 दैट इज़ -5. देखिए इसको समझ लीजिए इन दोनों को प्लस क्यों किया. ठीक है, टोटल फेयर फॉर x किलोमीटर दैट इज़ फेयर फॉर 1 किलोमीटर प्लस फेयर फॉर x माइनस 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 और x माइनस 1 क्या हो जाएगा x किलोमीटर और उसका चार्ज कितना है y रुपीज़. ठीक है, तो ये टोटल फेयर हो गया y रुपीज़. फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज़ और x माइनस 1 किलोमीटर का फेयर 5x माइनस 5 या 5 इंटू x माइनस 1. क्लियर. नाउ 8 माइनस 5 दैट इज़ 3 और 5x पहले लिखते हैं. सो y इक्वल्स टू 5x प्लस 3. इसको एक बार और समझ लीजिए कि ये कैसे आए. देखिए अगर हमने ये टोटल डिस्टेंस मानी x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है x किलोमीटर, यहाँ से और यहाँ तक टोटल ये डिस्टेंस दी हुई है x किलोमीटर. क्लियर. अगर ये x किलोमीटर है, इसमें से मैंने फर्स्ट ब्लॉक को मान लिया 1 किलोमीटर, फर्स्ट ब्लॉक 1 किलोमीटर, इसका चार्ज कितना है 8 रुपीज़ और बाकी जितने किलोमीटर्स हैं उसको हमने 5 फिल कर दिया. कितनी डिस्टेंस बची है x माइनस 1. अगर हम इसका फेयर काउंट करें फॉर एग्जांपल अगर 2 किलोमीटर लेते हैं हम उसके बाद ना, तो 2 किलोमीटर चार्ज कितना हो जाता, 2 किलोमीटर टोटल फेयर डिस्टेंस लेते हैं तो 8 + 5 13 आ जाता. अगर हम 3 किलोमीटर लेंगे तो 1 किलोमीटर का 8 और बाकी 2 किलोमीटर का फेयर 5 के अकॉर्डिंग मीन्स 5 2 जा 10, तो 10 8 जा 18. सेम ईयर अगर x माइनस 1 किलोमीटर का फेयर लेते हैं तो 5 इंटू x माइनस 1 और फर्स्ट का कितना है 8 वो प्लस कर देंगे दैट इज इक्वल टू y. क्लियर. तो y इक्वल्स टू आ गया हमारा 8 + 5 इंटू x माइनस 1 या फिर 5x माइनस 5. क्लियर. तो 5x प्लस 3 आ गया. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. सो फॉर ग्राफ वी कैन पुट एनी वैल्यू फॉर x. x की वैल्यू पहले 0 रखी
तो y इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स मीन्स 0 प्लस 3, 5 इंटू 0 मीन्स 0 और प्लस 3 मीन्स 3 आ गया। नेक्स्ट हमने 1 पुट किया, सो y इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 दैट इज 8। नाउ वी पुट 2, सो 5 2 जा 10 प्लस 3 दैट इज 13, तो x की वैल्यू 13 आ गई। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। तो x की वैल्यू कितनी है पहली 0 और y की वैल्यू 3, x 0 इज हियर एंड y 3 मीन्स बिटवीन 2 एंड 4, 2 का गैप लिया हुआ है, ठीक है, 3 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज 1,8, x इज 1 दिस वन, 0 2 के बीच में 1 हो गया और इसका 8 यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज 2,13, x इज 2 दिस वन एंड y इज 13, 12 एंड 14 के बीच में, तो ये आ गया 13, सो दिस पॉइंट इज 2,13। देन वी कैन जॉइन दिस पॉइंट्स, देन वी गेट अ ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन फिफ्थ। Fifth question is, from the choices given below, choose the equation whose graph are given in figure first and figure B, that is second. So first figure we draw here, this is figure A. This is the equation of line. We assume these points A that is minus 1 comma 1, O that is 0 comma 0 and B that is 1 comma minus 1, and 4 options are given, this one, clear. So now the line AOB is the line of equation which is satisfied by A, O and B. जो इक्वेशन है ए ओ बी वो किसके लिए होगी, जिस इक्वेशन के लिए इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, किसके लिए होगी वो, जिसके लिए तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा। तो हमने फर्स्ट रखा, फर्स्ट पार्ट क्या है इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट इसमें पुट किया ए दैट इज -1, 1। तो ए और बी में, इसमें देखिए ए में x कितना है -1 और b कितना है 1, तो x और y नॉट इक्वल, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्लियर। तो इसको छोड़ दीजिए। b को भी रख के देख सकते हैं, वो भी नॉट इक्वल है। सी, हाँ, जो ओ के लिए उसके लिए दोनों इक्वल है क्योंकि 0 0 तो उसको हमने पुट नहीं किया, बट अगर एक के लिए भी नॉट ट्रू है दैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट लिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, फर्स्ट पॉइंट है ए दैट इज -1 कॉमा +1, तो एक्स की जगह रखा हमने -1 और वाई की जगह पे +1, दोनों को सॉल्व किया, अगेन 0 और आर एच एस भी क्या है 0, क्लियर। सो दिस इज सेटिस्फाइड। सेकेंड पॉइंट रखा बी दैट इज 1 कॉमा -1, अगेन एक्स की जगह 1 और वाई की जगह -1, तो 1 -1 क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट पॉइंट रखा ओ दैट इज 0 0, तो 0 + 0 इक्वल टू 0, मीन्स this equation x plus y equal to 0 satisfied by these all three points. So the line AOB represents x plus y equal to 0. Clear? First part is done. Now for second part, we assume 3 points P, Q and R. These 3 points we assume P, Q, R. Now these are 4 parts are given. The line P, Q, R is line of equation which satisfied by P, Q and R. Clear? So first part y equals to x plus 2. x plus 2 लिया। इन पॉइंट P, अगर हम P पॉइंट देखें तो उसमें x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू 3, तो फर्स्ट में पुट करें y इक्वल टू एक्स प्लस 2 में, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3 और x प्लस 2 यानी कि -1 + 2, दोनों इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल, क्लियर, क्योंकि -1 + 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे 2 - 1 इज़ 1, क्लियर। यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है, तो इसीलिए इस टाइप से मैंने आपको वहाँ भी मना किया था कि इस टाइप से हम सॉल्व नहीं करेंगे, नॉट इक्वल आ रहा है, क्लियर, तो इसको नॉट इक्वल कर देंगे। सो विच इज़ नॉट इक्वल दैट मीन्स इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, तो दूसरा पॉइंट नहीं रखेंगे, एक पे ही वेरीफाई नहीं हुआ। नाउ थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट लेंगे y इक्वल्स टू x - 2, फर्स्ट पॉइंट लिया P दैट इज -1, 3, इन दिस x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 3। देखिए इसको मैंने सेपरेट सॉल्व किया है। आर एल एच एस कितना है y मीन्स 3 हो गया और आर एच एस x - 2, x की वैल्यू -1, तो -1 - 2 दैट मीन्स -3, विच इज़ नॉट इक्वल टू एल एच एस दैट इज़ y, क्लियर। नॉट इक्वल मीन्स ये भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, जब एक सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो बाकी पॉइंट्स हम वहाँ पे पुट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इज y इक्वल्स टू -x + 2, फर्स्ट पॉइंट P दैट इज -1, 3, x इक्वल टू -1 y इक्वल्स टू 3, तो x के प्लेस में -1 रखा है, आर एच एस में -x था तो -(-1) + 2 -(+1) दैट इज 2 + 2 दैट इज 3, एल एच एस इक्वल आ गई। नाउ फॉर पॉइंट Q 0, 2, x 0 y 2, तो x के प्लेस पे 0 रखा, -x + 2 तो -0 + 2 दैट मीन्स 2 इक्वल टू एल एच एस। एल एच एस क्यों कितना है, एल एच एस भी जो आर एच एस है वो भी 2 है, एल एच एस में क्या था y था और y की वैल्यू भी 2 है, इसका मतलब आर एच एस और एल एच एस दोनों इक्वल आ गए, क्लियर। तो ये पॉइंट भी इसके लिए वेरीफाई हो गया। नाउ वी आर वेरीफाइंग थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट वेरीफाई होने चाहिए। तो थर्ड पॉइंट था r दैट इज 2, 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो आर एच एस है -x + 2, x के प्लेस पे 2 रखा तो -2 + 2 दैट मीन्स 0, और आर एच एस क्या था आपका, जो एल एच एस था, सॉरी एल एच एस आपका था y और y की वैल्यू कितनी है 0, इट मीन्स दोनों इक्वल आ गया, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस दैट मीन्स all the 3 points satisfied the line PQR. So the line PQR represents y equals to -x + 2, clear. Now next question, that is sixth question is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body, then express this in the form of an equation in 2 variables
and draw the graph of the same. By taking the constant force as 5 units, also read from the graph the work done when the distance travelled by the body is 2 units first part and second part is 0 unit. So here firstly what is given, let the work done be x and distance be y, क्योंकि x और y एक्सिस पे ड्रॉ करना है तो x को हमने वर्क मान लिया और y को डिस्टेंस मान लिया. तो फोर्स को हमने f माना विच इज़ कॉन्स्टेंट एंड दैट इज गिवन 5 यूनिट्स. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि x प्रोपोर्शनल टू y हो गया. प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम साइन रिमूव करते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है, जो कांस्टेंट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है f. तो x इक्वल टू क्या हो गया Fy, और f की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 यूनिट, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 5y. f की वैल्यू पुट कर दी 5 तो x इक्वल टू आ गया 5y. क्लियर, क्योंकि एक रिलेशन हमारा वैसे भी वर्क का जो रिलेशन होता है फोर्स और डिस्टेंस का, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस f इंटू एस. नाउ इफ y इक्वल्स टू y की वैल्यू पुट किया 0 तो x इक्वल टू 5 इंटू 0 मीन 0, 1 पुट किया तो 5 इंटू 1 दैट मीन्स 5, 2 पुट किया तो 5 इंटू 2 दैट इज 10. तो पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, x एक्सिस पे लिया है 2 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और y एक्सिस पे लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट पॉइंट इज 0, 0, 0 इज दिस. सेकंड पॉइंट इज y1 और x5. x5 means this and y1 this one. Clear. Next point is x10 and y2. x10 is this, y2 this one. Clear. So these 3 points then join. So this is the graph of this equation. Now we have to find distance दी हुई है आपको 2 यूनिट, तो आपको वर्क फाइंड करना है. तो फर्स्ट पार्ट है डिस्टेंस y इक्वल्स टू 2 यूनिट, देन वर्क x. देखिए डिस्टेंस 2 दी हुई है, डिस्टेंस कौन से पे, y एक्सिस पे 2 है. तो अगर आप ग्राफ पे जाओगे ये पॉइंट आ गया और यहाँ से x एक्सिस पे आओगे तो ये x पे कितना मिला आपको 10 विच इज़ द वर्क. सेम है डिस्टेंस 0 दिया हुआ है तो देखिए पॉइंट क्या है 0, 0. इस पर अगर y 0 है तो इस पर x भी 0 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th विच इज़ यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड. टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा. यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशंस एज x एंड y एंड ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द सेम. ग्राफ ड्रॉ करना है. सो हियर लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी एंड फातिमा बी x एंड y. टोटल कंट्रीब्यूशन के भेजना मीन्स दोनों के कंट्रीब्यूशन को प्लस करना है. सो x प्लस वाई इक्वल टू 100. नाउ एनी वेरिएबल वी कैन सेपरेट. सो y को सेपरेट किया, x ट्रांसफर टू RHS दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड. सो y इक्वल्स टू 100 माइनस x. नाउ x की वैल्यू पुट किया, फर्स्ट वैल्यू वी पुट 0, सो 100 माइनस 0 दैट मीन्स 100. नेक्स्ट वैल्यू वी पुट 20, सो 100 माइनस 20 दैट मीन्स 80. नेक्स्ट वैल्यू वी पुट 40, सो 100 माइनस 40 दैट इज 60. क्लियर. x 0 है तो y 100 है. देखिए 20 का गैप लिया है मीन्स 20 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. x 0 y 100 दिस वन. नेक्स्ट पॉइंट इज x 20 y 80, x 20 एंड y 80 दिस वन. नेक्स्ट पॉइंट इज 40 एंड 60, x is 40 here, y 60 is here, these are meeting here. So join these 3 points. This is the graph of this equation. Now question number 8. 8th question is, in countries like USA and Canada, the temperature is measured in Fahrenheit. Measures in countries like India, it is measured in Celsius. There is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. There is a relation given, F equals to 9/5 C plus 32. It is given. Now draw the graph of the above linear equation using Celsius for x axis. जो Celsius है वो x axis पे ड्रॉ करना है एंड Fahrenheit for y axis, यानी x पे क्या रिप्रेजेंट करना है Celsius और y पे Fahrenheit. क्लियर. तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट बाद में रीड करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट में ग्राफ ड्रॉ करना है, सी की कुछ वैल्यूज़ लेनी है. यहाँ पे अपॉन में कितना है 5, तो कोशिश करेंगे 5 के मल्टीपल्स लेने के लिए. देखिए 0, 5, 10 लिया है, जिससे कि 5 कैंसिल हो जाएगा तो कंप्लीट वैल्यू में मिल जाएगी. तो सी की वैल्यू पहले 0 रखी, तो 9/5 इंटू सी यानी कि 0 प्लस 32, इट विल बी 0 प्लस 32 दैट मीन्स 32. नेक्स्ट वैल्यू पुट 5, 5 से 5 कैंसिल 1, 1 9 जा 9, तो 9 प्लस 32 दैट मीन्स 41. नेक्स्ट वैल्यू पुट 10, सो 5 2 जा 10, 2 आ गया, 2 9 जा 18, 18 प्लस 32 दैट इज 50. क्लियर. नाउ ड्रॉ द ग्राफ. 10 का गैप लिया हुआ है, 10 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री फॉरेनहाइट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. सेल्सियस आपका x पे है और फॉरेनहाइट y पे, दोनों के लिए 1 लिया है. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज 0, 32. x is 0 is here and y 32. Between 30 and 40 there are 10 small columns, means 1 centimeter equals to 10 millimeter. So the second column 30 और 40 के बीच में जो सेकंड स्मॉल कॉलम आएगा दैट इज 32. क्लियर. सो दिस इज द पॉइंट 0, 32. वी एज्यूम इट P. सेकंड पॉइंट इज 5, 41. X is 5 between 0 and 10. Fifth column is 5, this one, and 41 between 40 and 50. First small column, तो 41 ही हो गया. Both are meeting here. Clear. Q point. Next point is 10, 50. X is 10 and Y is 50. X 10 is here, Y 50 is here. Both are meeting here. Point R. Clear. Join these 3 points and produce the line both sides. Clear. दोनों तरफ हमें से प्रोड्यूस कर दिया क्योंकि इससे कुछ आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. See now second part.
Second part is we have to find if the temperature is 30 degrees Celsius, C is given 30 degrees Celsius, then we have to find F. So on the graph, C is 32 means on x-axis it is 30. Now we go to vertically on the graph, then it intersect at point S. Now if we were horizontally go to y-axis which is at 86. जब आप ग्राफ पे जाओगे, ठीक है, आप रियल ग्राफ पे जाओगे तो 80 और 90 के बीच में 6 स्मॉल कॉलम आएगा, मीन्स इट इज 86. So F will be 86. Next point is if F is 95 degree Fahrenheit, then what is the temperature in Celsius? F given 95. So F is 95 between 90 and 100, fifth small column. Go to horizontally which intersect the graph at T point. Now go to vertically which intersect the x-axis which is at 35 between 30 and 40, fifth small column. So it is 35. That means C equals to 35 degrees Celsius. Next point is fourth part is if the temperature is 0 degree Celsius, then what is the temperature in Fahrenheit? अगर C कितना है, 0 है, तो Fahrenheit कितना है? देखिए C 0 मीन्स x 0 है, तो x 0 और y हमें फाइंड करना है. सी द पॉइंट 0,32. x is 0 then y is 32. That means Fahrenheit temperature is 32. इसी में कहा है आगे एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री Fahrenheit, अगर 0 डिग्री Fahrenheit मीन्स F अगर 0 है, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? F 0 है मीन्स y 0 है, तो y एक्सिस पे 0 मीन्स x पे कहाँ कट कर रहा है? तो x पे यहाँ कट कर रहा है. ये -10 और -20 के बीच में 8th स्मॉल कॉलम है, सो इट विल बी -18. एक्चुअल जो आंसर आएगा -17.8 होगा, बट हम यहाँ पे एक्चुअल नहीं फाइंड कर सकते, 17.8 नहीं कर सकते, ठीक है. 10 और 20 जो हमने 10 लिया है तो 1 से डेसिमल में नहीं आ सकते, ओके. तो इट इज़ -18, हमें मेंशन -18 ही करना है, ओके. नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ Fahrenheit एंड सेल्सियस? Fahrenheit और सेल्सियस में दोनों इक्वल. देखिए अगर हम लाइन को इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट हमें M मिल रहा है जिसके लिए x भी -40 और y भी -40, मीन्स सेल्सियस भी -40 और Fahrenheit भी -40 है, मीन्स दोनों के लिए इसमें टेम्परेचर सेल्सियस और Fahrenheit टेम्परेचर बोथ आर इक्वल. सो दिस पॉइंट इज M. So yes, -40 degree Celsius equals to -40 degree Fahrenheit at point M, which is -40, 40. So this -40, -40. So this exercise is completed now.